Good morning, students. Very good morning. Very good morning. Okay. कैसे आप लोग? How are you all? Good. Okay. So have you got the assignment? Isn't it? So I have sent you the questions that you have to do actually. Isn't it? You have got it? So okay. So what we okay. So yeah, we will use Cengage, isn't it? We will use Cengage. Cengage book, isn't it? We'll use Cengage book, है ना? G Tewani book. This quadratic will come in chapter this algebra, isn't it? I have shared the soft copy, isn't it? Okay. So right now, whatever assignments we are giving, just focus on that. Okay. I have shared the two assignments, isn't it? Two assignment. One is this one. Again, I'm sharing with you. You have to do this one. Okay. You have to do this one. And the second is this one. Just wait. Yes, just wait. Okay, I'm just sharing it once again. These two assignments you have to do. Okay. Not all the questions. I have also given the list of the questions that you have to do. That's it. Just check everyone. Got it? Everyone got it? So we have to basically focus on for coming like tomorrow, day after tomorrow, we have to focus on these things. Okay. Now the list of the question again I'm sharing with you. List of the questions. Okay. Okay. So this is actually the syllabus of this week, isn't it? Okay. This is a syllabus. Okay. So we have to focus on these questions. Okay. If required, we will give you more questions once we complete with these questions. Everyone is clear? Everyone is clear? You can unmute and ask anything is there, isn't it?
So we have to basically focus on these questions, isn't it? First you have to do the first. I have written first. So you have to do first, second, third, fourth, fifth, sixth. Okay. Now the second part was you have to do. I have just written the second means you have to do 38, 39, 40, isn't it? Then third part is, so it includes all the varieties of questions, isn't it? So you have to basically focus on these things, isn't it? You have not received the assignment from our central office. So we have to focus on these things, isn't it? So this will include all your concepts, isn't it? If it is required, I'll give you more problems. Okay. Now, in order to solve these questions, what are the theories required? Isn't it? So for that also, I have shared you the this one thing I have shared with you, these things. Okay, I am again sharing with you. Okay, just theories. So we will discuss in the class also. We have discussed. Again, we will discuss in the class, isn't it? Just see. And I'm again sharing these four. Okay. Just see. Okay, I'm just sharing with you. Okay. So these are the theories which is required. So which I'll discuss today also, isn't it? I'll discuss all the cases, isn't it? So location of root, all the cases I'll discuss today, isn't it? All the discuss. I will make you write all the cases. We have explained how these conditions come, isn't it? Now today I'll discuss all the cases. I will make you write all the cases. There are total 9 or 10 cases you can make, isn't it? So I'll make you write all the cases. Now what you have to do, you have to learn all the cases logically. Just learn it, isn't it? Logically. And whenever any condition, I'll just explain you also. So if a particular question is coming, so how you will apply those things, isn't it? Just apply those conditions and solve the inequality. Isn't it? Am I clear to everyone? Am I clear to everyone? Raise your hand. Am I clear? Okay. Now let's start. Okay. ठीक है? चलो. अभी हम लोग सब केसेस को एक साथ लिखेंगे. आपको प्रॉपर्ली सभी केसेस को लिखना है. So topic is location of root. Okay. So we will write the cases, isn't it? All the cases. I have explained also. So we will just write the cases at one place, isn't it? I will make you write all the cases at one place. I will do all the questions, isn't it? I will just write the cases. I'll learn it, isn't it? So first case was in one place. I have explained many of the cases which I am doing right now, but I will make you write all the cases at one place, isn't it? So that it is easy for you to remember. So write properly, isn't it? Everyone write in your notebook properly, because these all cases will be important. Because question will be asked from these cases only, isn't it? So first case was what? Both the root is positive, isn't it? So what is the condition? So the graph, you know the graph. I'm just making one graph, isn't it? I'm just making one graph like this. This is alpha, this is beta. I'm just writing it, the condition, isn't it? Like this. More graph will be there, but I'm interested in just the condition. You have just write the condition. Here the condition will be, just writing here, the first condition will be b greater than equal to 0. Okay. So this is minus b by 2. At one place, everybody has to write. Okay. So the second condition will be what? A into f0 will be greater than 0. Isn't it? For all the cases, and third will be minus b by 2a is greater than 0. Okay. When both the root is positive. Isn't it? This is the first case. Now what is the second condition? This alpha beta less than 0. So what is the condition for this? Alpha beta less than 0. Okay. I have already explained you. So this will 0 will lie here and alpha and beta will be here. Okay. So what was in the first case? The same condition will be there. B greater than equal to 0. Okay. The second condition will be a as 0. You see a as 0. 0 will be coming here. So here again the a as 0 will be positive. And the third will be, this is again minus b by 2a. So minus b by 2a will be negative. Okay. So these are the two cases. So similarly, we will discuss the other cases also. Okay. We will make you write it. We have already explained these things. Okay. If any doubt is there, you can ask. Okay. Any doubt is there, you can ask. Isn't it? Any doubt is there, you can ask. Sir. Yes. Tell me, Anushka. Sir. Anchit. Yes. Sir, f of 0 0 क्यों नहीं हो सकता? F of 0 0 नहीं हो सकता.
क्योंकि ये यहाँ से नहीं जा सकता ना, ये एफ ऑफ जीरो जीरो कैसे होगा, ये बड़ा होना है ना, जीरो के इक्वल नहीं होना ना, अगर तब तो फिर केस ऐसा हो जाएगा ना, जीरो होगा तो एफ ऑफ जीरो ऐसा हो जाएगा ना, एफ ऑफ जीरो तो हमेशा बड़ा है, देखो यहाँ जीरो से बड़ा होने के लिए तो वाई कोऑर्डिनेट हमेशा बड़ा है। ओके, हाँ ठीक है, समझा, थैंक यू सर। इसे याद करना है सभी लोग, है ना, सभी लोग को याद करना है ये केस। एम आई क्लियर एवरीवन? जस्ट रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? एवरीवन, बस याद रखना है इसको, कैसे याद करना है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है इस चीज को, जस्ट गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर, वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस, ठीक है? अब मुझे केसेस लिख के क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है? वी विल नॉट स्ट्रेच इट फर्दर, ठीक है? ठीक है ना एवरीवन, अंडरस्टूड? क्या कर रहे हैं अभी हम लोग? गॉट इट? नो 7.8 का 189 वो करना नहीं है आपको, वो जो मैं बोल रहा हूँ वही करना है आपको केवल, है ना, वही करना है, बिकॉज सम ऑफ मोस्ट लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इज आउट ऑफ द टॉपिक, तो इस वीक का टॉपिक में जो भी आ रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर कावेद? ठीक है, चलो ये दो केसेस हो गए। व्हाट वुड द थर्ड केस? थर्ड केस क्या आएगा आपका? ऐसा आएगा, ठीक है? सभी लोगों को समझ आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं? देखो ऐसे हो गया, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, और यहाँ पर जीरो, यहाँ पर मतलब ये केस क्या है, ऐसे है कि जो रूट्स है वो किसके बीच में है? रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट्स आर ऑफ अपोजिट, और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, जीरो, है ना, बीटा इज ग्रेटर देन जीरो एंड लाइक दिस, है ना? अब इसको क्या करेंगे, मतलब ये क्या है, जीरो जो है वो दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका कंडीशन क्या बनेगा? पहला इज डी, है ना, दो रूट्स है तो इसमें डी ग्रेटर देन जीरो ही होगा केवल, है ना, इक्वल टू नहीं होगा। देखो मैंने आपको फाइल भी शेयर किया है। और सेकंड क्या बनेगा आपका? ए एफ जीरो, ए एफ जीरो क्या हो जाएगा यहाँ पर? नेगेटिव हो जाएगा। बस मैंने कल एक्सप्लेन भी किया था ये केस आपको, ठीक है? एवरीवन गॉट इट? रेज योर हैंड, एवरीवन गॉट इट? मैंने एक्सप्लेन किया था ये सब चीजें, कल ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। आई एम जस्ट मेकिंग यू राइट एट वन प्लेस। ओके, नो इश्यूज, है ना? कोई पेज नंबर पे मत जाओ आप, है ना, पेज नंबर पे मत जाओ आप, है ना? मैंने तो सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड किया था, वट एवर आई हैव देयर, आई डोंट हैव सिंगल बुक राइट नाउ, ठीक है? तो मैंने सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड किया था, ठीक है? 2.13 में चले जाओ आप, आपको मिल जाएगा सर। ठीक है? यस सर, marked alpha and beta on the parabola. थर्ड केस में आपने नंबर लाइन पे अल्फा एंड बीटा मार्क किया? नहीं, अल्फा बीटा यहाँ ही होगा ना। ओके, थैंक यू सर। हाँ, अल्फा बीटा रूट है ना, अल्फा बीटा तो यही होगा, ठीक है? एनी डाउट इज देयर? एनी डाउट? माइनस, नो माइनस बी, ये हमने कल एक्सप्लेन किया था मन, माइनस बी बाई टू में क्या होता है ना, माइनस बी बाई टू मैंने बताया था कल, मानसी ने पूछा था एक क्वेश्चन, है ना? तो माइनस बी बाई टू में क्या होगा? यहाँ पर होगा, बट हमको जीरो क्या करना है? जीरो तो यहाँ भी हो सकता है ना, और जीरो यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग को जीरो का लोकेशन नहीं पता है, जीरो का लोकेशन नहीं पता है। जीरो जैसे जीरो यहाँ भी हो सकता है, देखो माइनस बी बाई टू तो बीच में होगा, हमेशा हमेशा बीच में होगा, ये हमेशा इसके बीच में होगा, मतलब ये वर्टेक्स का ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन जीरो तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो मुझे यहाँ पर माइनस बी बाई टू का लोकेशन नहीं पता है, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू यस्टरडे। और इक्वल टू क्यों नहीं होगा? क्योंकि इक्वल टू इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर इक्वल टू हो गया ना तो फिर तो ऐसा हो जाएगा ना, जब तक ऐसा फुल साइड कर जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा, इस जीरो का तो पोजीशन ही नहीं बचेगा, मतलब दोनों रूट जीरो हो जाएंगे फिर, तो इसलिए इक्वल टू इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना, इसमें इक्वल टू नहीं आएगा, ठीक है? ये तीन केसेस हम लोगों ने डिस्कस किया ऑलरेडी, है ना? ठीक है, एवरीवन इज क्लियर? ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पर? कोई डाउट है? एनीबडी कैन आस्क, अनम्यूट एंड एनीबडी कैन आस्क। We are just writing all the cases in one place. We have already explained this, isn't it? Kaved, any doubt is there? Sir, in this we don't require third condition. Yes, no require ना, because third condition आप नहीं रख सकते हो ना, because जीरो तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो अगर यहाँ होगा ना तो माइनस बी बाई टू जीरो से छोटा हो जाएगा, और ये अगर यहाँ होगा तो माइनस बी बाई जीरो से बड़ा होगा, तो थर्ड केस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद रखना है आपको, ठीक है? अंडरस्टूड?
The first and second case is make the graph just touching that. Yes, मैंने just और भी ग्राफ बनेंगे, मैंने ये चीज ऑलरेडी ऋतिक बता दिया आपको, और भी केसेस बनेंगे, बट आई एम नॉट डूइंग इट, आई एम जस्ट राइटिंग द केसेस। जो मैंने एक्सप्लेन किया ना उससे मैं जस्ट एक जगह लिख रहा हूँ। वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट, है ना? ऑलरेडी एक्सप्लेन। यस ऋतिका। सर मुझे ये नहीं समझा आपने, जो इन एवरी केस यू हैव रिटन AF of 0 is greater than 0 and I just didn't get it. Why? AF 0 is greater than 0, क्योंकि आपने किया था ना पहले का क्लास, मैंने बताया ना इसको। देखो कैसे कर रहे हैं ना, देखो मैंने बताया इस चीज को, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इस चीज को। हाँ, और इसे मुझे फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो मैं आपको बताया था, आपने किया था पहले का क्लास ऋतिका। सर तो मुझे पूछना है कि तो my mic wasn't working for some reason. ठीक है, मैं बता देता हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है? देखो हो क्या रहा है ना, मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप पहले इसको लिखो एक जगह, सभी लोग लिख लोगे, फिर मैं इसको रब करूंगा। देखो हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, देखो सभी लोग, आप लोग पहले लिखो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या हो रहा है, जैसे इस केस में A पॉजिटिव है ना, A पॉजिटिव, देखो बाकी के लोग भी देखो A पॉजिटिव है ना, इस केस में A पॉजिटिव। तो जैसे यहाँ क्वाड्रेटिक मैंने क्या लिया है, एफ क्या लिया है, ये लिया है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना, ऐसा लिया है क्वाड्रेटिक, ठीक है? तो अगर A पॉजिटिव होगा, अच्छा एक चीज बताओ, F0 का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है? F0 क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? F0 इस कर्व में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जल्दी? F0 क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? देखो F0 क्या है ना, देखो x एक्सिस के ऊपर है, तो F0 पॉजिटिव है ना? F0 पॉजिटिव है, का देखो, तो A पॉजिटिव है, तो AF0 भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा? A मतलब क्या है, A इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर अगर F0 पॉजिटिव है, बिकॉज F0 का y कोऑर्डिनेट क्या है, x एक्सिस के ऊपर है, तो F0 पॉजिटिव होगा, और A भी पॉजिटिव है, तो यहाँ F0 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा ना किसी का? टेल मी, अंडरस्टूड और नॉट? Yes. है ना? देखो A क्या है, A इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर बहुत सारे केसेस बन रहे हैं, यहाँ पर ये केस बन रहे हैं, तो ये भी केस बन रहे हैं। इसमें जो ये जो है ना, ये जनरल, इसमें बहुत सारे, मैंने एक ही ग्राफ केवल लिया है, तो केसेस और भी बन रहे हैं, बट मैंने एक ही ग्राफ करके इसको कंडीशन, मुझे केवल कंडीशन आपको लिखवाना है एक जगह, दैट इज माय, मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर दिया प्रीवियस क्लास में कैसे हो रहा है, ठीक है? जस्ट मैं कंडीशन दिखा रहा हूँ आपको, दैट्स इट, ठीक है ना? अच्छा, अगर ग्राफ ऐसा होता तो ग्राफ तो ऐसा भी हो सकता था, है ना? देखो इसमें भी F0 पॉजिटिव हो जाए, क्यों? क्योंकि A नेगेटिव है इसका, और F0 यहाँ पर क्या है बताओ कृतिका, यहाँ पर F0 क्या है, अगर अल्फा बीटा है तो F0 क्या है यहाँ पर बताओ? Negative. व्हाट इज F0? नेगेटिव है, तो नेगेटिव, अगर दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसीलिए यहाँ पर ये जनरल कंडीशन है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, दिस इज अ जनरल कंडीशन, ठीक है? कुछ भी रहे, क्वाड्रेटिक कुछ भी रहे, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आया कि बोथ रूट इज पॉजिटिव, बस इसको आप अप्लाई करो, अगर बोथ इज रूट इज नेगेटिव, इसको अप्लाई करो, ठीक है? बोथ रूट लाइज बिटवीन, है ना, 0, ये क्या है क्वेश्चन, ये क्या है क्वेश्चन, 0 जो है ना वो दोनों रूट के बीच में आ रहा है, यहाँ पर दोनों रूट 0 से बड़ा है, यहाँ दोनों रूट 0 से छोटा है, और यहाँ पर जो दोनों रूट्स है ना वो 0 के बीच में, मतलब जो 0 है वो दोनों रूट्स के बीच में आ रहा है। ये 3 केसेस हो गए, आप लोग याद कर लोगे, देखो कैसे याद करोगे। पहला केस, दोनों रूट 0 से बड़ा है, ठीक है? उसके लिए क्या कंडीशन होगा, जल्दी से बताओ, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा -b/2 इज ग्रेटर देन 0, थर्ड व्हाट विल AF0 पॉजिटिव, ठीक है? सेकेंड, बोथ रूट इज नेगेटिव, बोथ रूट 0 से छोटा है, मतलब दोनों रूट 0 से छोटा का मतलब क्या हुआ, एक रूट -2 होगा, दूसरा रूट -1 होगा। उस केस में ये कंडीशन लगाएं, क्या कंडीशन है, d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, इक्वल भी हो सकता है। दूसरा क्या हो जाएगा, AF0 पॉजिटिव। देखो दोनों कंडीशन सेम है, खाली इसमें डिफरेंस हो रहा है, ऐसे याद रख लो, इसमें डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, इससे छोटा होगा। Am I clear? Now tell me how many of you understood this? Fast. ये अगर हो गया, अब किसी नंबर से बड़ा करना है तो सेम आएगा, सेम। बोलो कितने लोग क्लियर है? मैंने क्या बोला, अब ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, इस पे जो होगा ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा क्लास में, मतलब एग्जाम में आएंगे, क्लास में जो भी क्वेश्चन करेंगे इस पे ही बनेगा। बोथ रूट इज पॉजिटिव,
क्या याद रखोगे, बोलो जल्दी से, सभी लोग लिखो, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a एट 0 पॉजिटिव एंड माइनस बाई b बाई 2a पॉजिटिव, ठीक है, माइनस b बाई 2a भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर अगर दोनों रूट लेस देन 0 है तो क्या होगा, a एट 0 d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस, 2 a एट 0 पॉजिटिव, थर्ड माइनस b बाई 2a लेस देन 0, बस ये आ सकता है, हमें क्लियर। नाउ थर्ड केस क्या हो सकता है, 0 यहाँ आ सकता है, 0 यहाँ आ सकता है, और 0 एक कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यही 3 केस बनेगा। तो 0 अगर यहाँ आ गया तो क्या करेंगे, देखो इसमें आपको माइनस b बाई 2 को कंपेयर नहीं कर सकते हो, तो दोनों क्या होगा, यहाँ d ग्रेटर देन 0 होगा, और a एफ 0 देख लो, a एफ 0 क्या होगा, देखो कृतिका, a एफ 0 क्या होगा, यहाँ a पॉजिटिव है, f 0 क्या है, यहाँ बताओ f 0, बताओ f 0 क्या है, एवरीवन टेल मी व्हाट इज f 0, व्हाट इज f 0, नेगेटिव। क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है कृतिका, नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो नेगेटिव हो गया, गॉट इट एवरीवन, ठीक है। और माइनस b बाई 2a क्यों नहीं किए, क्योंकि माइनस b बाई 2a तो बीच में होता है, अब ये 0 कभी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो हम माइनस b बाई 2a पे कोई कंडीशन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। एनी मोर डाउट इज देयर, ठीक है, क्लियर है सबको, बस ये कंडीशन याद रखना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाते जाना है आपको कंडीशन, बस यही करना है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना है, ये कंडीशन याद कर लो लॉजिकली, ठीक है। अब देखो कैसे हम लोग ट्विस्ट करेंगे, अब यहां पर मान लो मैंने कर दिया ग्रेटर देन 0 को हटा के k कर दिया, बस, तो इसमें और 3 केसेस आ जाएंगे, तो 3 प्लस 3 कितना होता है, 3 प्लस 3 कितना होता है, 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 होता है 6, तो 6 केसेस ऐसे ही खत्म हो गए हमारे। अभी हम लोग 0 से बड़ा किए हैं, अब k से बड़ा करें, k व्हाट इज k इज एनी रियल नंबर, k इज एनी रियल नंबर, तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे कि बोथ रूट इज ग्रेटर देन k, फोर्थ केस, both root is less than k, fifth case, and k will lie between two roots, k will lie between two roots, बोलो how many of you getting this, बहुत इजी है, 6 केस तो ऐसे हो गए, पहले मैंने बोला both root greater than 0, both root less than 0, और 0 कहाँ लाई करेगा, बीच में लाई करेगा, एक बार इधर लाई करेगा, एक बार लेफ्ट में लाई करेगा, एक बार राइट पे, एक बार दोनों के बीच पे, उसी तरह कोई रियल नंबर अगर लेफ्ट पे लाई करेगा, राइट पे लाई करेगा और बीच पे लाई करेगा, 6 केस तो ऐसे ही हो गए, और 3 केसेस जानना है मुझे, ये 4 केसेस, Am I clear? अब कंडीशन सबका ऐसे ही बनेगा, अगर 0 का याद हो गया ना तो बाकी का ऐसे याद हो जाएगा, बोले सर इतना कंडीशन कैसे याद रखेंगे, तो मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो 3 याद रखो 6 याद हो जाएगा, 3 याद रखो 6 याद हो जाएगा, मैं तो इतना इजी बता रहा हूँ, तो सब में क्या करते हैं, खाली k ला देंगे, और k क्या है, कोई भी रियल नंबर, k इज एनी रियल नंबर, k बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, बस आप लैंग्वेज को समझना है आपके क्वेश्चन को, इसमें से 9 या 10 केसेस में ही क्वेश्चन होंगे, बस लैंग्वेज समझना है, इन इक्वेशन रेडी करना है और इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, दैट्स इट, बस। इसमें क्या हो जाएंगे बताओ, अब 0 की जगह क्या हो जाएंगे, लॉजिकली थोड़ा सोचो तो सब सभी निकलती होगा, के यहाँ पर भी के, अब बताओ क्या बनेगा कंडीशन, तो जल्दी से आप लोग करो, अनम्यूट करके एक एक करके मुझे बताओ, कोई भी क्या केसेस बनेगा, जल्दी से, मैंने सब अपना काम किया, अब चेंजेस क्या क्या आएगा, चलो कृतिका बताओ यहाँ क्या चेंजेस आएगा, यहाँ पर फर्स्ट केस में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं सर, कोई चेंज नहीं आएगा, वेरी गुड, कोई चेंज नहीं आएगा, ये सेम रहेगा, ठीक है। नाउ ध्रुव बताओ इसमें कोई चेंज आएगा, इसमें क्या चेंज आएगा, ध्रुव टेल मी व्हाट इज द चेंज हियर, सर वो AFK हो जाएगा सर, ब्रैकेट में k होगा, ये कौन सा k होगा, वो 0 की जगह ब्रैकेट में k होगा सर, AFK 0 के लिए ये k हो जाएगा, समझ आ रहा है, k हो गया, यहाँ 0 था k कर दिए, है ना, अच्छा मैं तो k बोला हूँ, हाँ ऐसे भी सोच सकते हो कि k तो 0 भी हो सकता है, ठीक है, तो सेम केस आने वाला है आपको, k का वैल्यू तो 0 भी पुट कर सकते हैं, मान लो मैंने k के लिए कंडीशन निकाल दिया, अब 0 के लिए करना तो k को 0 पुट कर दो, बिकॉज मैं तो बोला हूँ k तो कुछ भी रियल हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, चेंज आएगा क्या, कुछ चेंज आएगा, नहीं आएगा, सेम रहेगा, हो गया, इसमें बताओ माइनस b बाई 2 ग्रेटर देन k होगा सर, हाँ मतलब k हो जाएगा, ये k हो जाएगा, नाउ इसमें बताओ, हाँ इसमें बताओ सेकंड में क्या होगा बताओ, ये ग्रेटर देन 0, ये सही रहेगा, AF0 क्या हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अब ये k से कम है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हमें क्लियर,
ठीक है, नाउ थर्ड केस। सर मुझे दोनों में सेकंड कंडीशन नहीं समझा, आई एम सॉरी, आप वापस एक्सप्लेन करोगे? हाँ 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 हाँ, देखो कैसे है, हम लोग वहां क्या बोल रहे थे, 0 था ना, तो वहां पर एफ के क्या हो जाएगा, पहले बताओ एफ के क्या है, व्हाट इज बताओ एफ के क्या है? एक्स को के से सब्स्टिट्यूट करता है, राइट? हाँ, एफ के क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हाँ, क्या है बताओ? पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना? हाँ जी। हाँ, बहुत लोगों को, बच्चे को दिक्कत हो रहा है ये चीज, ऐसे समझ नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूँ ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर y 0 है, इसके ऊपर जितने सारे पॉइंट्स आएंगे सब में तो y पॉजिटिव होगा। यहाँ पर ये x, आप समझ नहीं लो, ये x एक्सिस है, समझो, सभी लोग बोलो सर ये x एक्सिस, सर यहाँ पॉजिटिव क्यों हो जाएगा? मैंने समझ रहे पॉजिटिव क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये x एक्सिस है और यहाँ पर कहीं y एक्सिस ऐसे होगा। तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर f के बात करें तो ये तो हमेशा y कोऑर्डिनेट का पॉजिटिव है, x एक्सिस से जो भी ऊपर पॉइंट, ये यहाँ पर x एक्सिस ये है, यहाँ का कोई भी पॉइंट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। यहाँ पर जितने सारे पॉइंट्स होंगे सब y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, इसके ऊपर भी जितने सारे पॉइंट्स होंगे सब y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। x एक्सिस के नीचे जितने सारे पॉइंट्स होते हैं y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है ना, एज सिंपल एज दैट। बस x एक्सिस के ऊपर जाओगे तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, x एक्सिस से नीचे आओगे तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, दैट्स इट। तो यहाँ पर हम लोग वही कर रहे हैं। अब ये जो पॉइंट है, जो, हाँ एक मिनट, ये जो पॉइंट है इसमें y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे हम, f के पॉजिटिव है, और a क्या है, यहाँ पर a पॉजिटिव लिया हूं, तो a f के क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा ना। बोलो सेम एज वी हैव डन फॉर a f0। बोलो कृतिका, समझ आया आपको? f के पॉजिटिव है, a मैंने फर्स्ट केस में लिया पॉजिटिव है, तो a f0 a f के भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। सर मेरे को अभी भी ये नहीं समझा कि जब हम के डाल रहे हैं एक्स की पोजीशन में तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, बिकॉज के पॉजिटिव है वो समझा, बट एफ के पॉजिटिव होना क्यों जरूरी है? नहीं समझ, प्लीज कम वन सेकंड। के पॉजिटिव नहीं है यहाँ पर, एफ के पॉजिटिव है। के तो एक्स का वैल्यू है, एफ के वाई का वैल्यू है, तो वाई का इसके फंक्शन वैल्यू अब क्या होता है, देखो मैं हमेशा बताऊं फंक्शन वैल्यू का मतलब क्या होता है, वाई का वैल्यू, है ना। तो जब एक्स के जगह के पुट कर रहे हो आप, तो ये एक्स की वैल्यू है, ये जो पुट कर रहे हैं ना ये एक्स की वैल्यू है, ये तो सब एक्स की वैल्यू है, के अल्फा ये सब एक्स की वैल्यू है, और जो वाई कोऑर्डिनेट मिल रहा है ना वो वाई की वैल्यू है। तो एफ के का मतलब क्या होता है, एफ के का मतलब होता है जब एक्स के जगह के पुट कर रहे हो तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, बताओ क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, तो एफ के पॉजिटिव है ना, तो एफ के पॉजिटिव है, और मैंने पहला केस में लिया कि ए पॉजिटिव है, तो ए एफ के भी पॉजिटिव होगा। हाँ जी, समझा, अब समझा, थैंक यू। समझा ना, ठीक है गुड। Sir, हाँ राशि बोलो, क्या आपका डाउट है? हाँ, in third case, how f is हाँ। negative? इन थर्ड के, हाँ अभी थर्ड केस हम लोग लिखे नहीं है की के टर्म्स में, अभी लिख लेते हैं पहले, ठीक है लिखे हो गया। हाँ, अब बताओ आप लोग लिखो तब तक, है ना। ये 6 केसेस हो गए, इसको मैं 3 बोल रहा हूँ, सॉरी 4 बोल रहा हूँ, इसको 5 बोल रहा हूँ, सब एक जगह लिखा होना चाहिए, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, एक जगह लिखा होना चाहिए सब केसेस। बोले सर बुक में लिखा है, एक जगह लिखा होना चाहिए, जो मैंने केसेस दिया एक जगह लिखा होना चाहिए, और इसको याद होना चाहिए आपको। हाँ टेल मी राशि। In the third case, how f is negative? How f Is negative. which is negative? AF is negative. AF is negative, ओके। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर f के क्या है बताओ, अब आपसे पूछ रहा हूँ f के क्या है, क्या है f के? Negative. f नेगेटिव है, a क्या है यहाँ पर, फाइलिंग है, तो a क्या है, Positive. तो a f के क्या हो जाएगा, Okay, negative. Yeah, got it. a पॉजिटिव है, f के नेगेटिव, सेम है ना, f के नेगेटिव है। ये तो मैंने एक केस लिया ना, और दूसरा केस भी होगा, तो मैं ये अब बोले सर a पॉजिटिव है यहाँ पर, तो वो तो मैं केस आपको डिस्कस किया था, a नेगेटिव ले दूसरा ग्राफ भी होगा ना इसका, तो ये जनरल केस बन रहा है, ये दूसरा ग्राफ कैसे होगा, ऐसा होगा।
तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर ए नेगेटिव है, एफ के क्या है यहाँ पर बताओ, राशि बताओ एफ के क्या है? F negative. नेगेटिव एफ के, Okay. एफ के नॉट ओके, सी एंड एट डेल, एफ के Positive. पॉजिटिव, तो ए एफ के क्या होगा यहाँ पर भी? Negative. है ना? ठीक है, बहुत बड़ी चीज सीख रहे हो आप लोग, ठीक है ना? ये चीज सीख रहे हो मतलब बहुत अच्छे से सीख रहे हो, ठीक है? 6 पॉइंट तक क्लियर है। नाउ टेल मी एनी डाउट इज देयर और नॉट? एनी डाउट इज देयर टिल हियर? एनी डाउट? टेल मी एनी डाउट इज देयर फर्स्ट। अच्छा, कैन यू एक्सप्लेन द AF0 फॉर सैड फेस ग्राफ? ओके, देखो पहले आप लिख लो, फिर मैं ऋत्विक बोल रहा है सर AF0 सैड फेस के लिए। क्लियर है ऋत्विक? मैंने एक्सप्लेन कर दिया बहुत सारी चीजें, क्लियर है अभी भी? Yes, Saket. Sir, in the second case, both root needs not the same, right? Like minus. Second case, no, not necessary. है ना? Second case means which case? Alpha beta. No, not necessary. है ना? Alpha beta. Third case, ना? Third case. You are talking about second case. Second case with this one. Second case, this one. Yeah, both root is less than k. This case, you are talking about this case, right? No, not necessary. Opposite in sign means what? Opposite in sign just means one is 3, then the other is -3. This is opposite sign. Okay? Okay, got it? Saket? Okay, please repeat. Okay, ठीक है। आप लोग लिख लिए सब केस, है ना? देखो, मैं अगर ऋत्विक, मैं अगर इसके लिए एक्सप्लेन कर दूं तो चलेगा? AF0 फॉर सैड केस, AF0 ग्रेटर देन 0 फॉर सैड केस। ओके, कौन सा केस के लिए डिस्कस करूं बताओ? उसी के लिए करूंगा, इसके लिए करूं, इसके लिए, किसके लिए करूं? आप लोग बाकी के लिए लिख लो, एवरीबॉडी राइट इट। किसके लिए करूं? सैड केस के, एनी ऑफ देम इज फाइन। नहीं, आप बोलो किसके लिए करूं? देखो, अब ऋत्विक बोल रहा है कि सर एक सैड केस के लिए डिस्कस करें, चलो इसी केस को सैड के लिए डिस्कस करते हैं, ठीक है? Now 6 cases we have done, है ना? इसके लिए सैड केस के लिए करता हूँ, ठीक है? इसके लिए, है ना? ये वाला केस के लिए हम लोग ने तो A पॉजिटिव लिया था, अब कृतिका देखो आप भी, है ना? A पॉजिटिव लिया था, ठीक है? अब A पॉजिटिव तो A ये बोल रहा है कि आप देखो, अब हम लोग A नेगेटिव भी हो सकता था इसमें, तो A नेगेटिव होता तो ऐसे होता है ना? अब ये क्या होता है? अल्फा होता, ये बीटा होता, ठीक है? K ऐसा होता, ठीक है? अब A नेगेटिव है, तो इसके लिए केसेस अब लिख रहे हैं हम लोग, है ना? इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं AFK, है ना? AFK, तो FK क्या है यहाँ बताओ? देखो ऋत्विक, FK क्या है? नेगेटिव। देखो FK क्या है? नेगेटिव है। A क्या मैंने लिया? A नेगेटिव है, तो AFK क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। देखो ये क्या ना हमने यहाँ पे, ठीक है? तो दोनों ये जो है ना, दिस इज अ जनरल कंडीशन which will include all the possible graphs and the condition. So this you have to apply. So after this you don't have to think about any cases. बस ये आप लगा दोगे तो all cases will be considered. ठीक है? A रहे नहीं रहे does not matter. ठीक है ऋत्विक, got it? No, D less than 0 का तो रूट ही नहीं होगा ना? अगर विशेष अगर D less than 0 रूट ही नहीं होगा तब तो वो, है ना? उसमें भी मैं कुछ आपको डिस्कस करूंगा, बट इट विल नॉट बी रिलेटेड टू रूट्स, isn't it? चलो, इट विल नॉट बी रिलेटेड टू रूट, है ना विशेष? मैं कुछ डिस्कस करूंगा D less than 0 के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बट इट विल नॉट बी रिलेटेड टू रूट। पहले ये पार्ट कर लूं, ठीक है? चलो ये हो गया। अब देखो, अब 7th केस, आप लोगों को 6 केसेस सबको याद होना चाहिए, अब ना 7th केस। अब देखना हम लोग कैसे केस यूज करके क्वेश्चंस बनाएंगे। Now see, what will be the 7th case? ठीक है? 7th केस देखो, 7th केस ऐसे हो जाएगा कि मान लो कि मैंने लिख रहा हूं कि both roots, है ना? both roots मतलब अल्फा बीटा lie
बिटवीन, अब दो नंबर आ रहे हैं पिक्चर में, है ना, K1 एंड K2, दो नंबर है K1 एंड K2, दो नंबर आ रहे हैं, याद रखना। अब मतलब ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसा, मतलब दो रूट्स है यहाँ पर, ये है अल्फा और ये है बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर ये K1 है और यहाँ ये K2, अब दोनों रूट K1 K2 के बीच में आ रहे हैं, मतलब ऐसा बोला जाएगा कि फाइंड द वैल्यू, कोई इक्वेशन दिया रहेगा, मान लो ऐसा a स्क्वायर ax प्लस ax स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच बोथ द रूट्स विल लाई बिटवीन, सम इंटरवल दे दिया जाएगा 1 से 3, तब कैसे, मतलब दोनों रूट्स इस केस में K1 K2, ये नया चीज है आपके लिए, ठीक है। मैंने आपको बोला था याद करना है सब केसेस, कैसे लिखेंगे इसका कंडीशन, इसका कंडीशन कैसे, पहले एक एक करके देखो, पहले हम लोग कंडीशन क्या लिखे, दो रूट्स है ना, दो रूट्स है, बोथ रूट्स मतलब क्या हो जाएगा, पहला कंडीशन क्या बनेगा, b ग्रेटर देन इक्वल टू, पहला बनेगा, इक्वल भी हो सकता है, तो दोनों इक्वल रूट इस केस के बीच में लाई करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ -b/2a भी है, ठीक है। अब एक एक करके सोचो, पहले इसके लिए सोचो, इसके लिए क्या होगा बोलो, इसके लिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर, अभी मान लो केवल ये नहीं होता, खाली ये होता, तब क्या लिखते हैं आप बोलो, क्या कंडीशन लगाते हैं इसके लिए, बोथ रूट इज ग्रेटर देन K1, तब क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं ना, a f K1 ग्रेटर देन लगाते हैं, अगर केवल ये होता, आप सोचो ये नहीं है, अभी केवल ये है, तो क्या लगाते हैं, देखो पुराने केस में a f K1 ग्रेटर देन 0, अब ये सोचो कि ये होता केवल, तो क्या लगाते हैं, a, बोलो जल्दी, अगर ये होता, अगर ये नहीं होता, खाली ये होता, तो वही केस हो गया कि बोथ रूट इज ग्रेटर देन K, तब क्या लगाते थे, a f K ग्रेटर देन 0, है ना, बोलो कितने लोगों को समझ आ रहा है मैंने क्या कर रहा हूं मैं, अगर मान लो आपका केवल ये नहीं होता, केवल ये होता, तब क्या लगाते, a f K इज ग्रेटर देन 0, मैं बोलता बोथ रूट्स इज ग्रेटर देन K, तो कंडीशन क्या लगाता था यहाँ पर, a f K ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर K1 K2 के बीच में, तो K1 क्या हो जाएगा, a f K1 ग्रेटर देन, अब फिर वो ऐसे सोचो कि ये नहीं होता, अब ये क्या करते हैं आप, बोथ रूट इज लेस देन K2, तो क्या लगाते हैं, a f K2 इज ग्रेटर देन 0, ये सेकंड केस है, ठीक है। व्हाट इज द फोर्थ केस बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा, -b/2a इज ग्रेटर देन K1, हो गया ये, सेवेंथ केस भी आपका हो गया। ये कब होगा, जब दो रूट है ना किसी इंटरवल पे लाई कर रहे हैं, मतलब किसी रेंज पे आपको बोला गया कि बोथ रूट्स इज बिटवीन 1 and 3, है ना, उस तरह के क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, जैसे अभी मैं केस सब लिखा रहा हूं आपको, जैसे इसको याद कर लो, ठीक है। Got it everyone? Any doubt is there? Please unmute and ask if any doubt is there. Any doubt? Tell me. Any doubt is there? Sir, ये बेसिकली क्या है, जो हमने लोग केसेस किया है उसी का एक कॉम्बिनेशन है, Sir. ठीक है। हाँ I didn't understand the Amma? condition. हाँ, Third condition. आपने ये, हाँ, कौन सा थर्ड कंडीशन, Yes, sir. देखो अगर आपको ऐसे बोला जाता है कि बोथ रूट इज ग्रेटर देन के, तो क्या लिखते हैं आप, बोथ रूट इज ग्रेटर देन के लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, बस ये केस पे फोकस करो, तो क्या लिखते हैं, a f K ग्रेटर देन 0 लिखते हैं ना, देखो हम लोगों ने लिखा था a f K ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर K1 आ गया, तो आप नहीं लिख सकते हो a f K1 ग्रेटर देन 0, जो आपने पहले ही किया था, बोलो माँ, वो जो हमने केसेस अभी किया था ना थोड़ा देर पहले, ऐसे वाला, ये K था और यहाँ अल्फा था और यहाँ बीटा था, याद है, इसमें एक केस हमने क्या लिखा था, a f K ग्रेटर देन 0 लिखा था, तो मान लो वो K की जगह K1 होता, तो मैं लिख सकता हूँ a f K1 ग्रेटर देन 0, Got it? Thank you, sir. ठीक है। सिमिलरली अगर बोथ रूट इज लेस देन के होता तो क्या लिखते हैं आप, a f K ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर K2 आ गया, तो यहाँ K2 कर दोगे, ये केस तैयार हो गया, और इसका D तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है ही, क्यों, क्योंकि ग्राफ ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे देखो ऐसे भी हो सकता है ग्राफ, ये K1 हो जाएगा और ये K2 हो जाएगा, और इस केस में अल्फा बीटा क्या होगा, ऐसा दोनों कोइंसाइड करेगा, ये भी हो सकता है, ये भी, यहाँ पर भी दोनों रूट्स क्या है, K1 और K2 के बीच में, ठीक है। और थर्ड केस क्या हो जाएगा कि -b/2a जो होगा वो K1 और K2 के बीच में, isn't it? Am I clear to everyone? Raise your hand fast. Am I clear? तो इसको याद रखना है लॉजिकली, इसको याद रखना है। अब बोले सर इसको कैसे क्लिक करेगा, याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखो लॉजिकली, जस्ट लर्न बाय हार्ट लॉजिकली, बस याद रखना है, मार्क्स जस्ट याद रखना है इसको। अब ये चीज हमको क्वेश्चन में अप्लाई करना है, दैट्स इट, बस याद कर लो,
अब आपको नया कुछ नहीं करना पड़ेगा, यही सब चीजें रिपीट करनी है हर क्वेश्चन में। Am I clear to everyone? ठीक है, चलो नाउ सी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 8 केस कर रहा हूँ, अब खत्म हो गया है ना। अब नाउ यू कैन रीड, है ना। चलो अब क्या होगा, देखो नेक्स्ट केस क्या होगा। अब देखो K1 K2 दोनों के बीच में लगेगा, तो मैं ऐसा नेक्स्ट केस बोल सकता हूँ, ये ऐसा है कर, ठीक है, ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। अब K1 K2 क्या कर रहा है, दोनों रूट, अब K1 K2 दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है, ऐसा है। ये केस क्या है, K1 K2 दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका केस क्या बनेगा पता है, तो सोचो कि अगर K1 होता, केवल इसको भूल जाओ थोड़ा देर के लिए, जस्ट फॉरगेट इट। तो अगर K1 होता तो क्या लिखते आपको, आप ये लिखते ना, क्या लिखते बताओ तो, ए, सभी सभी लिख के बताओ मुझे, क्या लिखते, क्या लिखते अगर K1 होता तो क्या लिखते, क्या लिखते, एवरीवन राइट इट फास्ट, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिटन। अगर केवल K1 होता तब क्या करते, केवल K1 होता, केवल K1 होता तो क्या लिखते। अभी हमने करवाया था केस कि दोनों रूट K1 जो है दोनों रूट के बीच में लाई करता है। अभी हमने थर्ड केस जो डिस्कस किया था K वाला, क्या लिखते हैं AF, क्या लिखते हैं एवरीवन फास्ट, राइट इट एवरीवन, राइट इट फास्ट, यस राइट इट, AFK is less than 0. वेरी गुड, AFK इज लेस देन 0, इजंट इट, वेरी गुड। तो K की जगह क्या लिखेंगे आद्या, K की जगह K1 है ना, K1 लिखेंगे। हाँ, yes sir. सेकेंड केस क्या बनेगा, अब ये K1 K2 आ गया, अगर K1 को आप भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो क्या आएगा, जल्दी से So फास्ट, same thing, right? सेम हो जाएगा, नहीं सेम AF बताओ, सेम क्या हो जाएगा, सेम यहाँ AFK2 पे is नहीं less than लिखेंगे 0. हम, सेम लिख दे क्या, सेम लिख दें, सेम नहीं, AF K2 है ना, Less than 0. बोलना बस। और एक कंडीशन और क्या आएगा, जिसको चेक करने का जरूरत नहीं है ना, बोलते हैं इसको चेक करने का जरूरत नहीं है, इसको आप ऑप्शनल है, बोलते हैं कि ये खुद से खुद सेटिस्फाई हो जाता है, बट आप इसको चेक कर लेना अगर करना होगा, मैं रिकमेंड करता हूँ चेक कर लेना, बस देखा जाता है कि ये ऑप्शनल है, ठीक है। चलो लेकिन इसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, बोलो ये 8 केस भी आ गया, बस एक केस केवल बचा है अभी, एक केस बस, जॉब इज डन, ठीक है। इस वीक का जो मैक्सिमम पोर्शन हो गया है, बस ये बचा है आप लोगों को। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, बोलो हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, हाउ Sir, मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड, हाँ why is FK in the negative y-axis? FK ये Yes. FK1 and आप K2 बताओ, both. ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, Positive x-axis. तो इसके नीचे क्या होगा, y एक्सिस नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ऐसे ये y एक्सिस Negative. कहीं भी होगा, तो ये ऐसे है, तो ये जो कोऑर्डिनेट आ रहा है ऐसे गया, कर्व का पॉइंट कहाँ मिला यहाँ पर, Sir, तो but y उसे कोऑर्डिनेट नीचे ही क्यों लेते? नीचे क्यों, कर्व नीचे है, ये कर्व के पास जाओगे ना आप ऐसे तो किसी को ले लोगे, एक कर्व के पास जा रहे हो ना आप, ये आप कर्व के पास जा रहे हो, कर्व से पूछ रहे हो, सर कर्व ऊपर का y वाले कोऑर्डिनेट केस नेगेटिव, तो K1 नीचे ही जाएगा, फिर AF K1 ग्रेटर देन 0 क्यों? एक मिनट, ये नीचे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कर्व के पास में जा रहा हो, तो कर्व का तो पॉइंट यहाँ पर है ना, कर्व तो ऊपर नहीं है, कर्व तो इधर यहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अगर आपको K1 में y कोऑर्डिनेट कर्व पे चाहिए तो यहाँ ही जाओगे ना आप। Okay. So Got it now. whenever K is inside the curve, it will be negative, and outside it will be positive. Depends on the curve. Depends on the curve. This is the curve. If this is the curve, if this is the curve, if this is the curve, FK1 is negative, isn't it? If this is the curve. And what is A here? A here, A is positive. Filing shape है. तो A FK1 क्या हो जाएगा? Negative ही होगा ना? A FK1 negative हो जाएगा. Similarly, A FK2 क्या हो जाएगा? Negative. ठीक है? अब बताओ इसमें क्या बोल रहे थे आप? बोलो साथ में कुछ बोल रहे थे? इसमें क्या है? K1 क्या है? अब देखो यहाँ देखो, ये K1 के लिए हम ऊपर जाएंगे ना, क्योंकि कर्व का पॉइंट कहाँ है? कर्व कहाँ, वो देखो आप पहले। कर्व इस तरफ है, आप नीचे कैसे जा सकते हो? कर्व जहाँ होगा वहां जाना होगा ना, मुझे कर्व के पास जाना है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, कर्व से पूछ रहा हूँ। देखो फंक्शनल वैल्यू मुझे कर्व पे निकालना है,
तो फंक्शन से पूछोगे ना, फंक्शन तो ये है आपका, दिस इज द फंक्शन, तो हमेशा आप फंक्शन के पास जाओगे, फंक्शन आपको आंसर देगा ना, दिस इज द फंक्शन, तो यहाँ जाओगे, तो यहाँ जब जा रहे हैं तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ना, ये जो पॉइंट आ रहे हैं वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो दिस y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। नाउ हियर a इज पॉजिटिव, मैंने केवल एक केस लिया है, Fk1 इज आल्सो पॉजिटिव, सो द प्रोडक्ट इज अगेन पॉजिटिव। एम आई क्लियर सर? यस सर। ओके, ये मैंने केवल एक केस डिस्कस किया है, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं सभी केसेस एक जगह दिखाना चाहता हूँ आपको। अगर दूसरा ग्राफ भी आप करोगे तो वही चीज आएगा, देखो दूसरा ग्राफ करो वही चीज आएगा ना, सेम चीज आएगा। आप ऐसे कर लिए मान लो, है ना, ये K1 हो गया और ये K2 हो गया, मैं एक ही ग्राफ बनाया हुआ है, तो ग्राफ तो इसमें 4 ग्राफ बनेंगे इसमें, है ना, ऐसे बनेंगे, एक बार टच करके जाएगा वो बनेगा, ऐसे बनेगा, फिर एक बार टच करके जाएगा, तो सभी केसेस के लिए सेम आएंगे, इसीलिए मैंने इसको जनरल कंडीशन बोल रहा हूँ। अब देखो इसमें देखो A नेगेटिव है, Fk1 क्या है, Fk1 क्या है बताओ राशि, Fk1 क्या है, जल्दी से बताओ, देख के बताओ क्या होगा Negative. Fk1। किससे पूछोगे आप, कर्व से, तो कर्व का पॉइंट कहाँ पर है बताओ, यहाँ पर है ना, तो कर्व से पूछोगे तो यहाँ आएगा, तो Fk1 नेगेटिव होगा ना, तो आप दोनों को Yes. प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा, Positive. पॉजिटिव आएगा। बस देखो कितना अच्छा सीख रहे हो, है ना, गुड। ठीक है, एम आई क्लियर एवरीवन? अब इसको याद कर लो, जस्ट रिमेंबर इट, ओनली 1 केस, 8 केस हो गया आपका, 8 केस हो गया। चलो, अब कोई डाउट है इसमें, लेकिन व्हाट्सएप में एनी डाउट? हाँ, अब ऋत्विक पूछ रहा है सर वाई कांट डी बी 0। ठीक है, गुड क्वेश्चन। डी अगर 0 करते हैं, चलो करते हैं, है ना, एक बार कर देते हैं 0 को, देखते हैं क्या होगा, है ना, करने में क्या जाता है ना, नहीं होगा तो फिर है ना। देखो अब ऋत्विक बोल रहा है सर डी 0 क्यों नहीं हो, कर दो 0, तो ऐसे होगा, ऐसे होगा ना, okay। अब ये अल्फा बीटा ही नहीं आएगा, तो K1 K2 बीच में कैसे आ सकता है बताओ, तब K1 K2 आएगा क्या, तब तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ये भी बीटा हो जाएगा, ये भी K1 हो जाएगा, ये भी K2 हो जाएगा, तब कोई ये मीनिंग ही नहीं बनेगा यहाँ पर, जो मैं बोल रहा हूँ कि बोथ रूट्स लाई बिटवीन K1 एंड K2, मीनिंग ही नहीं बनेगा इसको। अच्छा, इसको मुझे लिखना पड़ेगा ना, इसको क्या लिखूंगा कि इसमें लिखा बोथ रूट्स लाई बिटवीन K1 K2, तो क्या बोलूंगा इसमें कि K1 K2 है ना, कोई इंटरवल है, क्या लिखूंगा इसको, ऐसे भी लिखते हैं, उसका बहुत सारा वर्जन होता है लिखने का, समझ आ रहा है ऋत्विक? अगर K1 K2 रूट के बीच में लाई कर रहा है तो देखो सभी तो हो जाए, K1 भी एक हो जाए, K2 सब तो एक हो गया, है ना, तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे ना, इसीलिए इक्वल टू 0 नहीं कर पाऊंगा हम लोग, है ना, इक्वल टू 0 नहीं हो पाएगा। एम आई क्लियर ऋत्विक? इसमें देखो आप इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं हम लोग, देखो स्टेटमेंट कैसा होगा, क्वेश्चन का वर्जन कैसा होगा इसका, क्वेश्चन का वर्जन ऐसा होगा, इसमें क्वेश्चन का वर्जन ऐसा होगा कि बहुत सारा तरह से आप बोल सकते हैं इसको, आप लोग भी बोल सकते हो, इसमें ऐसे बोलेंगे 1 रूट, ऐसे बोलेंगे, ऐसा क्वेश्चन रहेगा 1 रूट इज, क्या लिखेंगे, लेसर देन, है ना, लेसर देन और लेस देन जो भी है ना, लेसर देन K1 एंड अदर रूट, कभी भी ऐसा वर्जन मिले ना तो मतलब ये कंडीशन है, एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन K2, और इंटरवल क्या है K1 K2, है ना, और इंटरवल क्या है K1 K2, है ना, और K1 K2 मतलब एक रूट ऐसा बोला जाएगा, जैसे मान लो क्वेश्चन बोला जाएगा, कभी ऐसा क्वेश्चन है 1 रूट इज ग्रेटर देन इज लेसर देन 2 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 3, ऐसा रहेगा, तो मतलब आप सोचोगे ये वर्जन से बनेगा। जैसे आप लोग देखो, मैंने आपके साथ जो शेयर किया है ना फाइल, अब देखो मैंने आपके साथ एक फाइल शेयर किया है, इसको आप लिखो पहले, फिर मैं ये वर्जन दिखाता हूँ आपको। अच्छा, माइनस, अब बोल रहे सर माइनस b/2 इस पे नहीं आएगा, अब देखो माइनस b/2 का भी अगेन यहाँ पता नहीं है, क्यों, क्योंकि माइनस b/2 क्या हो सकता है, कहीं भी लाई कर सकता है, अब K1 इधर लाई कर सकता है ना, माइनस b/2 तो बीच में होगा, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं, अब ऐसा भी हो सकता है माइनस, देखो मैं बता रहा हूँ माइनस b/2 मानो यहाँ हो गया, ठीक है, अब K1 यहाँ भी हो सकता है ना, देखो K1 यहाँ भी हो सकता है, समझ आ रहा है, अब हो सकता है K1 K2 सब इस साइड में हो जाए, तब आप माइनस b/2 को K1 K2 से कंपेयर नहीं कर पाओगे, कांट कंपेयर, ठीक है, गॉट इट?
अब क्वेश्चन का वर्जन देखो कैसा है ना? आप एक बार देखो क्वेश्चन का वर्जन। गॉट इट एवरीवन? नो, हाँ इस केस में ऑप्शन, बट अभी मतलब मैं इसको ऑप्शनल इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप लॉजिकली पहले चीज को समझो, फिर आपने बोला सर ऑप्शनल क्यों है, तो इसको मैं ऑप्शनल को हटा ही दे रहा हूँ, ठीक है? मैं नहीं लिखना चाहता इसको, बिकॉज फिर इट डज नॉट मेक सेंस। फिर आप लोग बोलो क्यों सर हटा रहे हो आप, इसीलिए मतलब वो आ जाता है, देखा गया है कि वो अगर नहीं भी निकालोगे ना तो यहाँ से जो सोल्यूशन आएगा ना वही फाइनल सोल्यूशन है, ये फॉर्म, ठीक है? तो फॉर कंसेप्ट रीजन डोंट इग्नोर नाउ, इजंट इट? एवरीवन इज क्लियर? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, गुड। Am I clear to everyone? Hope? ठीक है। Saket, Harshal, everyone? Let me see. Everyone is clear? Everyone? No doubt is there? Just raise your hand fast. Raise your hand. Manan, clear everyone? Manan? Clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो ठीक है ना? इसको याद रखना, क्या करना है मनन, इसको क्या करना है? यू हैव टू लर्न इट, इजंट इट? यू हैव टू लर्न इट ऑल द 8 केसेस। अब एक लास्ट केस में करूंगा, ठीक है? चलो इस क्वेश्चन का थोड़ा वर्जन देखें क्या? चलो अब देखो, अब एक क्वेश्चन का वर्जन देखते हैं, ठीक है? देखो मैंने आपसे एक शीट शेयर किया था, जस्ट ये वाला शीट शेयर किया था अभी, देखो ये वाला शीट शेयर किया था, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ये वाला, जस्ट देखो, जस्ट वेट, just see. I'm just sharing it, isn't it? I'm just sharing with you. ठीक है, देखो अब वर्जन देखो, मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ आपको ये शीट। देखो देखो क्वेश्चन का वर्जन देखो, देखो वन रूटेड, लास्ट क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन, एवरीबॉडी कैन सी 15 क्वेश्चन। वन रूट इज ग्रेटर देन 2 एंड अनदर इज स्मॉलर देन 1। देखो सभी लोग देख रहे हो, कितने लोग देख पा रहे हो इस चीज को? देखो एवरीवन जस्ट चेक इट whether you can see in the WhatsApp or not. Everyone check it. One root is 15 क्वेश्चन जो मैं लिखा हूं, 1.145 का 15 क्वेश्चन। देखो वन रूट इज, सबका वर्जन आप समझ जाओगे, सब वैसे सीधे क्वेश्चन है। वन रूट इज ग्रेटर देन 2 एंड अदर रूट इज लेस स्मॉलर देन 1। वन रूट इज ग्रेटर देन 2 मतलब K2 क्या है? 2 है। एंड अदर रूट इज स्मॉलर देन 1 मतलब K1 क्या है? 1 है। मतलब कंडीशन कैसा आ रहा है ये, इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, बट मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देने के लिए कर रहा हूँ। मतलब क्वेश्चन ऐसा है, ये ऐसा है, अब बोल रहा है कि वन रूट इज स्मॉलर देन, तो स्मॉलर मतलब क्या हो गया? ये 1 यहाँ लाई करेगा और 2 कहाँ लाई करेगा? यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा ये। तो आप कंडीशन क्या लगाओगे? AF1 इज लेस देन 0, AF2 इज लेस देन 0 एंड D ग्रेटर देन 0। बस हो गया, बन जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन हम बनाएंगे, इजंट इट? ये सब क्वेश्चन हम बनाएंगे, है ना? यस 1.40, यस 1.40, यस लेफ्ट टॉप, यस यस यस। देखो सभी लोग देखो, अब ये सब क्वेश्चन हम डील करेंगे, बट मैं ये बार बार एम्फेसिस दे रहा हूँ कि आर्यमन देखो, हम लोग सबको याद करेंगे क्वेश्चन, जो केसेस है 9 केसेस को मुझे वी हैव टू रिमेंबर। आई हैव शेयर्ड द चीट आल्सो, आई हैव एक्सप्लेन्ड आल्सो, वी हैव टू रिमेंबर ऑल द कंडीशन एंड जस्ट सी व्हिच ऑफ द कंडीशन इज देयर, है ना? कौन सा कंडीशन इसमें अप्लाई हो रहा है, जस्ट अप्लाई दैट कंडीशन, है ना? ये इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे, सॉल्व द इक्वेशन, विल गेट दैट। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो मैं यही कर रहा हूँ, जब हम लोग क्वेश्चंस करने जाएंगे तो एवरीबॉडी शुड रिमेंबर द केसेस, है ना? कौन सा केस आ रहा है, उसका कंडीशन क्या है, फिर इसमें कोई there should not be any confusion, isn't it? When I am applying the cases, it should not be any confusion. तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबको याद होना चाहिए, isn't it? सभी को याद होना चाहिए। Am I clear to everyone? Just raise your hand. Am I clear to everyone? क्या मैं बोल रहा हूँ समझ आ रहा है आपको? सभी केसेस याद होनी चाहिए। अगर क्वेश्चंस बनाने हैं, अगर कंडीशन में ही कंफ्यूजन होगा तो फाइनल आंसर गलत ही आएगा। सब याद होना चाहिए, 8 9 के 6 तो ऐसे ही याद हो गए, और
ये हो गए एक, ये हो गए दो, दो हो गए और एक लास्ट कंडीशन है वो मैं भी करवा रहा हूँ, ठीक है। एवरीवन अंडरस्टूड, एक जगह सबका लिखा होना चाहिए। नाउ सी, अब एक कंडीशन और क्या बचेगा, बहुत छोटा सा कंडीशन है वो, ठीक है। What is the ninth condition? Ninth condition is, ये ninth condition देखना, exactly, ये statement है exactly one root, देखो ये थोड़ा सा confusing है, one root lies between K1 and K2, ठीक है। मतलब exactly एक रूट K1 K2 के बीच में लाई करेगा, exactly इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि ये ग्राफ है, ठीक है, ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वन रूट का मतलब ये हो गया, चाहे ये K1 है और मान लेते हैं हम ये क्या कर लिए K2 K12 से बड़ा है, K2 इज ग्रेटर देन K1, ठीक है। तो एग्जैक्टली वन का क्या मतलब हो गया कि ऐसा हो गया, ये केस हो सकता है या दूसरा केस क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लुक दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, so it will be like this K1 and K2. इसका मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन K1 and K2, so this either this is the case or this is the case. एग्जैक्टली वन रूट मतलब हो गया ये चाहे ये, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन, तो इसका केस बहुत इजी है, देखो इसको याद रखना, कभी भी अगर ऐसा आएगा ना, मतलब के अल्फा जो है वो चाहे K1 K2 में लाई कर सकता है और क्या हो सकता है बीटा K1 K2 के बीच में लाई कर सकता है। इसका केस याद करने के लिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसको ऐसे करना आप, ठीक है। यहाँ पर करना पड़ेगा, इसमें ये लगा देना आप FK1 into FK2, इसको याद करना less than 0, बस दिस इज द कंडीशन, बस इसको याद करना, ठीक है, नो कंफ्यूजन। कभी भी अगर ऐसा आएगा तो ये आप ये कर देना FK1 into FK2 is less than 0, बस याद रखो। अगर ऐसा केस आएगा कभी एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन K1 K2, बस इसमें नो कंफ्यूजन, क्योंकि यहाँ देखो FK1 FK2 यहाँ पर क्या लेस देन 0 है, यहाँ पर भी FK1 क्या है नेगेटिव है, FK2 क्या पॉजिटिव है, यहाँ FK1 क्या है पॉजिटिव, यहाँ FK2, इसको याद कर लो, बस दिस इज द ओनली कंडीशन, और कुछ आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नो कंफ्यूजन, ठीक है। अब डी भी लगाने का जरूरत नहीं है, याद कर लो, अगर डी लगाना होगा तो यहाँ से जो सोल्यूशन आएगा वो उससे मैच करेगा, ठीक है, उसके अंदर में ही सोल्यूशन आएगा, तो आप इसको याद कर लो। एग्जैक्टली जब भी रहा आप FK1 FK2 को क्या करो, K कुछ इंक्लूड नहीं करना आपको, FK1 FK2 लेस देन 0 कर देना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। Am I clear to everyone? ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। एग्जैक्टली वाला केस मैंने सबसे लास्ट में डिस्कस किया, आप डायरेक्टली क्या करना, देखो यहाँ FK1 क्या है पॉजिटिव है, FK2 क्या है नेगेटिव है, यहाँ पर FK1 क्या है नेगेटिव, यहाँ पर है, तो दोनों केस में क्या है ये चीज सही है, तो आप इसको ये लगा देना एग्जैक्टली का केस में। बाकी का 8 + 1 9 केसेस हो गए। अब इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आपको शीट नहीं मिला, आप ग्रुप में नहीं हो, ठीक है, मैं भेजता हूँ आपको शीट, ठीक है, ठीक है। एवरीबॉडी, एवरीवन क्लियर? -b/2a का भी लोकेशन नहीं पता है यहाँ पर ना, -b/2a, बस ये केस तो आप याद रखो ऐसे करके, इससे सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। -b/2a का अगेन पोजीशन नहीं पता है यहाँ पर, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो बस ये कंडीशन लगाओ, आ जाएगा, ठीक है। बस इसको ऐसे याद कर लेंगे कुछ, ठीक है, ठीक है। मैं इंक्लूड कर लेता हूँ जो ग्रुप में नहीं हो आप लोग, ठीक है। I will include it, okay? Just send me the hi, है ना? Just send me hi who are not there in math group. I will add it, है ना? ठीक है? I will add you. Send me hi, I will add you. Okay? Send me hi in my number. Okay? I'll add you. ठीक है? Who all are not there, isn't it? ठीक है? तो यहाँ तक हम लोगों ने ये चीज कर लिया. All the 9 cases हमारे दिमाग में आ गया, है ना? It is fitted in my brain, isn't it? Now how to do the question? Okay. Now let's take some questions, isn't it? Okay, now see.
नाउ सी एवरीवन, नाउ अब हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, नाउ सी देखो, अब हम लोग देखते हैं 2.13 है ना, जो हमने किया 2.13। अब इसमें देखो अभी कौन सा क्वेश्चन करूं, बताओ 2.13 में, 2.13 में कौन सा क्वेश्चन करूं? 2.13, एवरीबॉडी सी 2.13, 2.13। देखो 2.13 में कौन सा क्वेश्चन करूं? देखो लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 4, 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 करता हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ये क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5, इजंट इट? चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 2.13, मैंने जो शीट शेयर किया उसका 22.13 का क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स डू, ठीक है। 2.13 क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स सी। सबको दिख रहा है क्वेश्चन? एवरीबॉडी कैन सी द क्वेश्चन, इजंट इट? लुक, इफ आई एम जस्ट राइटिंग इट अगेन, इफ बोथ रूट्स, ठीक है, बोथ रूट्स, यहाँ क्वेश्चन है ax², ठीक है, प्लस ax प्लस फिफ्थ इज ना, बोथ रूट्स x² प्लस ax प्लस 2, ठीक है। यस, अभी तक ये करो और कुछ कुछ चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। यस, अभी तक आप यही करो, लाइज इन द इंटरवल, इतना ही पढ़ना है आपको, है ना। और कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं बताऊंगा, इतना पहले आप कर लो, है ना। इन द इंटरवल 0 से 3, ठीक है। देन फाइंड रेंज ऑफ ए, फाइंड ए, फाइंड रेंज ऑफ ए, ऐसा है क्वेश्चन। कितना इजी क्वेश्चन है। If both roots lies in the interval 0 से 3, then find the exhaustive ranges. Now, first of all, everybody just draw the diagram. सबसे पहले आप सभी रफ केस कराओ, कर्व बनाओ सभी लोग। If both the roots lies in the interval, then find range of. First of all, आपको क्या करना है? आपको देखना है कौन सा केस है, उस केस का कर्व बनाओ, उस केस का कर्व बनाओ। Everyone, fast. Everyone draw the curve. Everyone draw the curve. कौन सा केस फिट हो रहा है? कौन सा केस फिट हो रहा है? जस्ट कौन सा केस फिट हो रहा है? जल्दी से एवरीवन जस्ट सेंड मी फास्ट। कौन सा केस फिट हो रहा है? बोथ रूट्स लाइज इन द इंटरवल। कौन सा केस है ये? कौन सा केस है? उसका कर्व बनाओ जल्दी से एंड सेंड इट टू मी फास्ट एवरीवन। कौन सा केस है ये? बोथ रूट लाइज इन द इंटरवल 0 से 3। कौन सा केस है? ड्रॉ करो डायग्राम, ड्रॉ करो कर्व सभी लोग एंड क्लिक द फुट एंड सेंड इट टू मी। यस यस कुछ अगर यस, वेरी गुड। देखो कितना इजी है। यस यस, कंडीशन लिख लो, जिसने कर्व बनाया कंडीशन लिख लो। वेरी गुड वेरी गुड, फास्ट एवरीवन। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना। जस्ट एक लैंग्वेज है। दोनों कर्व, एक ही कर्व बनाओ, दोनों कर्व बनाने की जरूरत नहीं। और कंडीशन लिखो, हम लोग दोनों कर्व, वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम, इजंट इट। हम लोग को कर्व बनाना है और कंडीशन लिखना है, दैट्स इट। कर्व एंड कंडीशन बोथ, एवरीबॉडी राइट। कर्व एंड कंडीशन। 7th case, no, you don't have to write 7th case. Draw the curve. Draw the curve, everyone. Draw the curve. Yes. चलो और कंडीशन लिखो, सभी लोग कंडीशन लिखो। चलो देखो क्या हो गया। ऐसा है, मैं एक ही कर्व बना रहा हूँ, ठीक है, एक ही कर्व। मुझे इतना टाइम नहीं होगा कि कर्व बनाने का, है ना, क्योंकि आप लोग एग्जाम में इतना कर्व नहीं बना। जल्दी से बनाया आपने और यहाँ पर 0 और 3 लिख दिया, ठीक है। अब क्या है? बोथ रूट क्या हो रहा है? 0 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो क्या कंडीशन होता था इसका? जल्दी से याद करो, क्या होता था? बाहर में लाई करता तो क्या होता था? बोलो जल्दी से। पहले d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फर्स्ट होता था। सेकंड क्या होता था? बोलो, याद कर लो, इसको याद होगा तभी बनेगा, है ना। अब उतना नहीं टाइम वेस्ट करेंगे हम। -b/2 किसके बीच में लाई करेगा? 0 से 3 के बीच में। थर्ड क्या बनेगा बताओ? थर्ड क्या बनेगा? f0 a f0। a का वैल्यू क्या है? 1 है, तो a f0 लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली लिखो f0 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर फोर्थ क्या हो जाएगा? बोलो, f3 इज ग्रेटर देन 0। बोलो कितने लोगों को समझ आया? ये 4 केसेस बनेंगे। अब 4 केसेस का क्या करना? d ग्रेटर देन 0 इक्वल टू भी होगा f
जीरो होगा, एफ अल्फा नहीं, ध्यान दो थोड़ा, एफ जीरो। एवरीवन लिखना नहीं है आपको, आपको ऐसे नहीं याद है, आप पहले ऐसे ही लिखो। नहीं ये केस नहीं है तावेद, देखो ध्यान से देखो, एक जगह मैंने बोला था लिखा होना चाहिए, वो केस को आपको यहाँ पर लिखना बहुत जरूरी है। ये वो वाला केस था, F0 केस आप लिखो, आप ग्राफ बना रहे हो तो फिर जो कंडीशन है उसको लिख लो आप, जो मैंने आपको लिखाया है बस वही करना है। एवरीवन आद्या क्लिक द फोटो एंड सेंड, ठीक है, क्लिक द फोटो एंड सेंड। ये नहीं है कंडीशन, तावेद प्लीज लुक वंस अगेन, ये 7th केस था। ऋत्विक एवरीवन जस्ट जो ग्राफ है मैंने कंडीशन ऑलरेडी लिखा है, उस कंडीशन को यहाँ पर आप लिख लो बस। एवरीबॉडी यस यस, देखो है क्लियर है, माइनस BBITA ऐसे लिखना है इसको, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ग्रेटर देन 0 लेस, इस तरह से लिखा जाता है ना, ठीक है ठीक है। नो डाउट इज देयर, नो डाउट, चलो यस ध्रुव, राइट द कंडीशन ध्रुव, राइट द कंडीशन, यस यस राइट द कंडीशन एवरीवन, राइट द कंडीशन। ओके अब क्या करेंगे, देखो अब इसको सॉल्व कर लो। अब बी पहला केस है, डी ग्रेटर देन 0, तो डी कितना आ जाएगा, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4, तो ए स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहले आएगा क्या, वे भी कब करेंगे इसको, तो क्या होगा a माइनस 2√2 है ना, a प्लस 2√2। देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। अब यहाँ से सोल्यूशन क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा माइनस 2√2। देखो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ना, लेकिन यहाँ से अब सॉलिड हो जाएगा, यहाँ से दिया जाएगा। सबका सॉल्यूशन निकालो, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। फिर सेकंड का सॉल्यूशन निकालो, माइनस b/2 है, माइनस b/2 क्या होगा, माइनस a/2, माइनस a/2 इनइक्वालिटी है, केवल इनइक्वालिटी है, 0 से 3, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 0 से 6। अब माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन -6 एंड लेस देन 0 हो जाएगा। ये सेकंड आ गया। थर्ड देखो क्या आ रहा है, थर्ड f0 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा। अब ये हमेशा 0 से बड़ा है, तो ये तो हमेशा हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल, कुछ भी हो जाएगा, ये हमेशा होगा ऑलवेज। फोर्थ क्या आ जाएगा, देखो f3 पुट करो, 9 + 3a + 2 इज ग्रेटर देन 0, ये कितना आ जाएगा, 11 + 3a इज ग्रेटर देन 0, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, -11/3। अब तब का क्या ले लोगे, तब एक कॉमन नंबर लाइन में सॉल्यूशन निकालोगे, तो कॉमन नंबर लाइन में सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, देखो ऐसे निकलेगा, कॉमन नंबर लाइन लिया, व्हाट इज द कॉमन नंबर लाइन, अब सब सॉल्यूशन को बैठा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहला, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -6 यहाँ रखिए। फिर क्या आएगा बोलो, फिर -6 हो गया, 2 पॉइंट है ना, 1.422 मतलब 2.8 ये हो गया। इसके बाद ये आ जाएगा -11/3। फिर क्या आ जाएगा, -2√2। फिर क्या आ जाएगा बताओ, 0। फिर क्या आ जाएगा, 2√2। सबको मैंने पुट कर दिया। अब सब सॉल्यूशन को क्या रखा, ऐसे रख दिया। ये सॉल्यूशन पहला आएगा, देखो ये सॉल्यूशन, दिस इज फ्रॉम फर्स्ट, पहला हो गया। सेकेंड से क्या आएगा, -6 से 0, ठीक है। थर्ड क्या होगा, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब बताओ तीनों कहाँ जाके मिल रहा है, बताओ तीनों कहाँ जाके मिल रहा है, ये रीजन में देखो एवरीवन, तीनों कहाँ जाके मिल रहा है, कौन से रीजन में मिल रहा है, ये रीजन में, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। -11/3 ये ओपन होगा और ये -2√2। नाउ चेक एवरीवन, देखो एक एक करके आप देखोगे तो इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। कंडीशन आपने लगाया, कंडीशन पहले मैंने बोला याद होना चाहिए, ठीक है, कंडीशन याद होना चाहिए। देखो ये कंडीशन लगाया, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यू कैन से दिस इज 3-4 कंडीशन। 3-4 कंडीशन तो हमने ऑलरेडी लिखा था ना विशेष, ये हमने बताया था। ये कंडीशन क्या है, ये इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको, ये चीज में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। मैं यही बोल रहा हूँ कि जो चीज मैंने कराया उसको जाके मैंने पुट कर दिया। AF0, ए क्या है यहाँ पर, ए का वैल्यू 1 था ना, ए का वैल्यू 1 था। देखो ए का वैल्यू क्या था, इक्वेशन क्या था, सबसे मुझे देखना, इक्वेशन क्या था, ये था इक्वेशन। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना, मैं जो बोल रहा हूँ इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आप लोगों को।
डाउट है तो एक बार मैं क्लियर करता हूँ, बट डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, क्योंकि ये तो बना बनाया कंडीशन है, ये तो बना बनाया कंडीशन ही है विशेष, ये बना बनाया। अच्छा हाँ ये चीज ना, हाँ ठीक है ना, ये डाउट हो सकता है आपका, है ना। 2 ग्रेटर देन 0। अब हम लोग इनइक्वालिटी में ऐसा एक चीज किए थे, याद है आपको, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था इनइक्वालिटी में, मुझे याद है असाइनमेंट 3 में ऐसा कुछ आया था, ऐसा कुछ था, नंबर को एग्जैक्टली याद नहीं है, ऐसा कुछ याद है आपको, कट गया था ये और 3 ग्रेटर देन 2 हो गया था। तो इसमें x का वैल्यू आपने क्या लिखा था, रियल है, मतलब x का कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। 2 ग्रेटर देन 0 इज ए यूनिवर्सल स्टेटमेंट, 3 ग्रेटर देन 0 इज ए यूनिवर्सल स्टेटमेंट, वो हमेशा ट्रू होगा। समझ आ रहा है, ये है विशेष, गॉट इट। अब ये वाला ना, ये देखो, अब ये तो इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी, ये आपने असाइनमेंट 3 में किया था, 11 प्लस 3 ग्रेटर देन 0, ये का वैल्यू कितना होगा, माइनस। यहां से आया, ये वाला समझ गया, बेबी कब लगा, फैक्टर कर दिए इसको, तो ग्रेटर देन 0 कहां होगा, यहाँ पॉजिटिव। अब तीनों को क्या ले लिए, एक नंबर लाइन में तीनों सॉल्यूशन को ले लिए, ये सॉल्यूशन को, यहां से सॉल्यूशन क्या है, ये ले लिए -6 से 0, है ना। यहां से तो सभी रियल नंबर आएगा, ये तो पूरा नंबर होगा, इससे तो कुछ इंटरसेक्शन नहीं आएगा, यहां से कॉमन क्या आ गया। नाउ टेल मी हाउ मेनी कैन अंडरस्टूड, बताओ, किसी को डाउट है पूछो, जस्ट अनम्यूट एंड आस्क। सर शुड नॉट बी 9 प्लस 3a प्लस 6, ये 9 प्लस 3a प्लस 2 होगा ना, 6 कैसे होगा यार, 2 है ना, 3 यहाँ x थोड़ी ना है ना। ओके नाउ टेल मी, ये कुछ अगर आपको डाउट है बताओ जल्दी से। a is greater than -11/3 ना, आपने फोर्थ कंडीशन लिखा है, तो फिर वहां पर ऊपर -1/3 नहीं 11 नहीं है तो क्या ना, बट सर वो 9 आएगा ना, तो फिर वो 6 के वो साइड चले जाएगा। 9 कैसे आएगा, 11 हाँ, बाई नहीं 3 सर, है ना, 11 हाँ, बाई 3 कितना होता है, -11/3 वो -6 है, ये 6 के -3.3 है, 3 पॉइंट कितना होता है, ओह राइट, सॉरी 3.6, ओके माय बैड it is a 9 to 6 से 18, ये कितना होता है, -2.8। अरे हाँ, जस्ट हम लोग वेरी करके किया था वही चीज है, Correct, बस correct, इनइक्वालिटी है पूरा, है ना। हाँ यस सर, बाकी के लोग बोलो कोई डाउट है तो, एनी डाउट इज देयर, जस्ट बताओ, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई डिड यू डू -a/2 इन द सेकंड केस। -a/2 इसलिए है ना, -b/2 कितना है, -b ये है ना, a है -a, -b व्हाट इज x कोएफिशिएंट ऑफ x, तो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, है ना, -b/2 है, तो ये चीज देखो -a/2 आएगा ना, -b/2 है, a क्या है 1 है ना, -b क्या है, ये है -a, तो 0 से 3 है, तो माइनस से क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आता है, मैंने बताया था, तो ये हो गया 0 से 6, और माइनस से मल्टीप्लाई करता है तो इक्वलिटी चेंज हो जाता है, तो मतलब ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ये नंबर यहाँ आ जाएगा, ये नंबर यहाँ आ जाएगा। कभी भी देखना ऐसा अगर होगा ना, माइनस से 0 से 6 है, तो -8 से अगर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ध्यान रखना, इसको थोड़ा देखना, नोट करना, अगर डाउट है तो थोड़ा सा देखो आप, फिर हम बताएंगे इस चीज को, ठीक है। इफ एनी डाउट इज देयर आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन। ऐसे बनते हैं क्वेश्चन, इजंट इट, ऐसे बनते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड, जस्ट रेज योर हैंड फास्ट, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड फास्ट, ठीक है। आप लोग देखो, वी विल अगेन सॉल्व इट, नो नीड टू वरी अबाउट इट, इजंट इट, नो नीड टू वरी, है ना। जो स्टैंडर्ड कंडीशन आप उसको याद करो एंड देन विल सॉल्व द क्वेश्चन अगेन, ठीक है। तो अभी इतना ही रखते हैं, है ना, योर अदर सेशंस इज आल्सो देयर, ठीक है। टाटा बाय बाय, वी विल अगेन डू इट, डोंट नीड टू वरी, है ना। चलो बाय, टाटा।